So good evening, everyone. Fêtons les saisons. The name of the chapter 7 is Fêtons les saisons. That means let us celebrate the seasons. Let us celebrate the seasons. So what you have to do is you have to take a pencil in your hand and you have to keep writing over there. Hello, Amay. Amay, are you there? Yes, sir. Amay, did you watch the videos I asked you to? Yeah, Amay. Yes, sir. I watched it. Were they easy or difficult? कौन सा? It is quite कौन? easy. Okay, it is quite easy. चलो ठीक है, great. So let's start, students. Eric lit le journal. So students, मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से मुझे कि एरिक कैरेक्टर पसंद ही नहीं है. ओके, जरा भी नहीं पसंद, एकदम इतना सा भी नहीं भाता है मुझे. चलो ठीक है. एरिक lit le journal. Let's start. Tell me what's the meaning of Eric lit le journal. You have to help me with the Eric English. read the newspaper. Very good. चलो ठीक है. So Eric reads the newspaper. गांव भर की पंचायत इस एरिक को, ये देखना. ओके एंड सो एरिक ने स्टूडेंट्स, एरिक ने न्यूज़पेपर रीड किया और फिर एरिक ने क्या बोला? नील your parents lives at Mumbai. नील ते पारो habita Mumbai. So your Look this new. parents live in Mumbai? Question mark. उसने क्वेश्चन पूछा. रगात सेट नोवेल, क्या मतलब इसका? Look this new. Look at this news. रगाते मींस टू लुक एट होता है, टू लुक एट दिस न्यूज. ओके, एकदम ताजी ताजी खबर है ये. देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सो नील ने बोला, स्टूडेंट्स, नील ने बोला montre-moi la nouvelle. Montre-moi. What is montre-moi la nouvelle? Show me the news. Yeah, so student, montrer फुल वर्ब मैंने पहले ही बताया था. montrer टू शो होता है, MONTRER, montrer टू शो. तो उसने कमांड दिया show me the news. Here is hold. Je vais les appeler. I'm going to call them. Students, तुम लोग बता सकते हो ये कौन सा टेंस है यहाँ पर? continue. Future Prosh. Very good, future prosh. अभी हमने future prosh किया था वीडियो में. Subject pronoun, conjugation of verb aller plus infinitive. Right, students? यही पढ़ा था हमने. Yes, sir. Okay. So you guys have to learn subject pronoun plus Yes, aller sir. plus infinitive. Okay. I'm going to call them. तो बच्चे लोग अभी हम लोग न्यूज़पेपर के ऊपर ट्रांसलेशन करेंगे. Let's see न्यूज़पेपर के अंदर क्या लिखा था. La ville de Mumbai paralysée par les pluies de la mousson. Tell me English translation. La ville de Mumbai. What is la ville de Mumbai? The city of Mumbai. City of Mumbai. Paralysé Yes, is Mumbai. paralyzed. Okay. So students, paralyzed. Par la pluie. So par is by the. अच्छा, important है. PAR. Par is a preposition. Par means by होता है. By the rains of the monsoon. तो स्टूडेंट्स ऐसे लिखा हुआ है कि पूरा मुंबई थम चुका है. मॉनसून की बारिश की वजह से पूरा मुंबई थम चुका है बच्चे लोग. सो उसमें लिखा, ओके, बाद में लिखा है ले प्लुई टॉरेंशियल पैरालिज मुंबई मार्दी. So the torrential, I don't know the exact spelling what is torrential, God knows. The torrential rains have paralyzed Mumbai. Sir Mardi, tell me, Sir Mardi is which day? Tuesday, very good. Nandi Tuesday. Mardi, yeah. लिख दिया पूरा, फिर बोल रहा हूँ फिर से. The torrential rains have paralyzed Mumbai this Tuesday. चलो, तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत नॉर्मल है यार. मुंबई के अंदर हर बार ये होता ही रहता है. थोड़े से भी बारिश होती है तो पूरा मुंबई थम जाता है, बिकॉज जल्दी पानी भर जाता है यहाँ पर. चलो ठीक है. तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, नील ने ये खबर किसको दी थी? नील को दी कि नील तेरे माँ बाप, तेरे मॉम डैड मुंबई में रहते. देखिए क्या न्यूज आई है, मुंबई पूरा फ्लड वर्ड आ चुका है, बहुत बारिश आ चुकी है. तो स्टूडेंट्स नील ने बाद में क्या किया, एकदम फटाफट से टेलीफोन To his parents. calls to his parents. So basically नील calls to his parents. उसने अपनी मम्मी को कॉल करके बात कर ली और फिर देखते क्या हुआ. स्टूडेंट्स, नील ने बताया तू वाबिया शेमुआ. तू वाबिया मींस everything is fine. All Everything is fine with me. या शे नहीं, विद मी नहीं बेटा. शे का मतलब क्या होता है? at the place of. तो एट माय प्लेस आएगा, मुआ है ना. एट माय प्लेस. शे मतलब एट समवन्स प्लेस होता है, तो शे मुआ मतलब एट माय प्लेस. तो एवरीथिंग इज फाइन एट माय प्लेस, है ना. सब एकदम बढ़िया है, कोई भी नहीं डूबा है मेरे घर से फ्लड में. ये बहुत अच्छी बात है. थैंक यू
Sejontil. This is This is kind of fine. you. तो यहाँ My पर नील, friend. या सो नील स्टूडेंट्स किसको थैंक यू बोल रहा है यहाँ पर बताओ? Friends. Friends, my friends. नहीं, नॉट माय फ्रेंड, एरिक को बोल रहा है भाई. ऑब्वियसली एरिक ने उसको आगे बताई थी ना. एरिक ने आके बताया था देख मुंबई के अंदर ऐसा वैसा हुआ है, तो नील ने बोला एवरीथिंग इज फाइन, इट्स नाइस ऑफ यू माय फ्रेंड. तो ये माय फ्रेंड किसको बता रहा है? मेरे एरिक को फ्रेंड बता रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर भी ये यहाँ पे तुमको शायद लग रहा होगा कि एरिक काफी अच्छा इंसान है, पर मुझे जरा भी नहीं पसंद. मैं आगे बताऊंगा रीजन से उसके, है ना. इन इंडिया पोंदोला मुसो इल्का बोकू. तो स्टूडेंट्स अब नील को किसी ने नहीं पूछा, पर नील ने अपने मन से ही शुरू कर दिया. ठीक है, कि इंडिया में क्या होता है. In India during the monsoon, it rains a lot. सॉरी, या सो स्टूडेंट्स क्या हुआ? ऑब्वियसली इन इंडिया ड्यूरिंग द मॉनसून. ओके, मॉनसून, एक सेकंड, सॉरी. So in India during the monsoon, il pleut beaucoup, it rains A lot. full stop. It rains a lot, full stop. Quelquefois, il y a des inondations et la vie est difficile. Sometimes there are floods Yeah, and very to good. live is very difficult. Very good students. So the word is inundation. Inundation is the word जिसमें लिखा हुआ है. Copy of a thing. Just one second. So sometimes area is, you know, there are floods. Sometimes there are floods, and la vie est difficile, and the life is difficult. Okay, students. तुम लोग होता है la vie est belle. ये ना बहुत सारे बच्चों का स्टेटस होता है. La vie est belle. Tell me क्या होगा इसका मीनिंग? La vie est belle. Life is beautiful. The life is Very beautiful. good. Life is beautiful. चलो. Next is malgré cela. Malgré मतलब in spite of. In spite of. In spite of. ये क्यों रो रहा है? ऐसे ही रो रहा है. Okay. In spite of. Malgré cela. So in spite of this, comma. Cela मतलब this side of this. On célèbre les fêtes avec joie. इसका मतलब क्या है? One. Celebrate Party The festivals with joy. Festivals with joy. with Joy. joy. तो स्टूडेंट्स उनका कहने का मतलब ये कि बहुत फ्लड आती है, लाइफ डिफिकल्ट होती है, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. हम तो बहुत एंजॉय करते हैं सारे फेस्टिवल्स को, बहुत मजे से एकदम मजा कर लेते हैं एकदम, ऐसा उन्होंने बोला है. ठीक है, अब ईरा भी इंडियन है स्टूडेंट्स, तो ईरा भी और 5 सारी चीजें बताने वाली है. और एते, तो अब क्या हुआ था, नील ने खाली मॉनसून डिस्क्राइब किया था, तो ईरा बोलती है रुको मैं बताती हूँ समर में क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. और एते, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एते मतलब समर होता है. इन समर la soleil brûle et il fait très chaud. So the sun, soleil मतलब sun होता है. The sun burns मतलब वो है ना चुपती गर्मी का मौसम आया, ऐसा कुछ. And il fait chaud मतलब the weather is hot, and the weather is hot. तो बच्चे लोग गर्मी में क्या होता है, बहुत सन जलता है, ओके, चुपता है, and the weather is very hot. Après la chaleur, what is après? After. किसने कुछ पूछा? प्रिया, स्कॉचिंग बोल सकते हैं ना हम लोग, क्या बोल सकते हैं? सनबर्न को. SCORCHING. नहीं, वापस बोलो, स्पेलिंग क्या बोला आपने? SCORCHING. सॉर्चिंग, ये क्या होता है? सर एस के बाद सी है. SCEORCHING ऐसा? ई में नहीं आता. ओके, स्कॉर्चिंग. अच्छा, दिस इज एन इंग्लिश वर्ड यू आर टेलिंग मी. आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ वर्ड. ओके, हो सकता है ये वर्ड मुझे डिक्शनरी में चेक करना होगा. निकिता, आप ये स्कॉर्चिंग वर्ड बोल रहे हो निकिता आप? हाँ सर. एंड व्हाट डज दैट मीन? स्कॉर्चिंग मींस सनबर्न. Very hot. हाँ. ओके, वेरी हॉट और बर्निंग. ओके, हो सकता है बेटा, मेरे को तो नहीं आइडिया, मैंने नहीं देखा कभी. ओके, सो आप बोल सकते हो द स्कॉचिंग. आई डोंट नो हाउ वुड वी फ्रेम इट. एंड द वेदर इज हॉट. आगे बढ़ते हैं. après la chaleur, after the heat, or attend la pluie. So one waits for the rain. तो obviously students बहुत गर्मी हो जाती है, फिर हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं. किसका इंतजार करते हैं बहुत बेसब्री से? Rainy. Rain.
Okay, Atharva, I got it. One waits for the rain. With impatience. Okay, with impatience लिखेंगे. avec impatience मतलब बहुत एकदम बेसब्री से इंतजार करते हैं बच्चे लोग. उसके बाद alla compagnia. What is alla compagnia? In the courtyard. In the countryside. At the countryside. Countryside मतलब थोड़ा गांव की तरफ जाएंगे, नेटिव प्लेस की तरफ जाएंगे. Tooth verdit, everything turns. Okay, everything turns green. सब कुछ स्टूडेंट्स ग्रीन ग्रीन हो जाएगा. इसमें हम इस चैप्टर में आयर एंडिंग वर्ब भी पढ़ने वाले हैं. एवरीथिंग टर्न्स ग्रीन. मुआ जो प्रेफर लिवेर. तो ईरा ने बोला ईरा को क्या पसंद है बच्चे लोग? एस I prefer फॉर winter. मी. या आई प्रेफर लिवेर. लिवेर इज विंटर. तो स्टूडेंट्स देखो हमने यहाँ पे 3 सीजन के नाम पढ़े हैं. बताओ मॉनसून के लिए कौन सा वर्ड है? Plue. Plui. नहीं, मुसोन. MOUSSON लिखा हुआ है यहाँ पे. मुसोन. समर के लिए कौन सा वर्ड था? एते. Ete. एते. और विंटर के लिए कौन सा वर्ड है? Hiver. Hiver. So आपको Hiver. तीनों वर्ड को अंडरलाइन करना है. You want, you can just make a rectangle box also over there if you want. Okay. So I prefer winter. Quand il fait doux. So when then the weather is, when the weather is cool. doux मतलब cool होता है, mild होता है, mild होता है. मतलब वो लोग कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ठंडी में भी बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है. mild होता है. mild मतलब ना ठंडी ना गर्मी. chez nous मतलब at our place. at our place. चलो. तो इतना स्टूडेंट्स हमने बहुत सारा इंडिया के ऊपर डिस्कस कर दिया. अब इंडिया के बाद हम किस पर आने वाले हैं? थोड़ा सा हम सो अब रॉबर्ट बोलने वाला है स्टूडेंट्स. लेट्स सी व्हाट रॉबर्ट वांट्स टू से. रॉबर्ट, लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू से. ओ कनाडा le hiver est long et dur. Tell me what does that mean? In Canada, the winter is long and hard. The winter is long and hard. long and hard या तो strong लिख सकते हैं. winter is strong. Okay, winter is strong. Il neige et tout blanchit. Il neige मतलब it rains. नहीं, it snows. It snows and Moving. everything turns White also. white. Everything turns white. Right. तो स्टूडेंट्स पूरा white 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 हो जाता है. ओ प्रिंटॉम. It's a new season. Tell me प्रिंटॉम कौन सा सीजन है? Spring. Yeah. In spring season, yeah. In spring season also, OC मतलब also market important word. OC also होता है. Printemps को भी students rectangle box में डाल दो because it is also name of a season. Printemps. So in spring season also, il fait frais. Also the weather is cool. The weather is cool. जब भी il fait आएगा, il fait हम weather को describe करते हैं. Il fait, the weather is. Il fait, the weather is. Tout le monde aime l'été et l'automne. Everyone. So everyone Likes summer and autumn. Yeah, summer and autumn. AUTUMNE. Is this right spelling in English? Autumn? No. No? ये नहीं आएगा. E नहीं आएगा. AUTUMN. AUTUMN. Okay. God, this is so difficult. Everyone likes summer and autumn. Autumn और autumn कितना similar लगता है एकदम ही. चलो ठीक है. So students, तुम लोग रियलाइज कर रहे हो इंडिया के अंदर समर किसी को नहीं पसंद, लेकिन कनाडा में लोगों को समर पसंद है. ऐसा क्यों बोलो? Because the winter is sun. long there. No, sir. Because the sun rays are not that strong. Yeah, sun rays are not strong and people are fed up of, we are fed up of summer because it's too hot here throughout the time. Whereas in Canada it's too cold throughout the time and that is why they wait eagerly for. मतलब in short जिसको जो कम मिलता है उसको वो पसंद है बस. अपन को ठंडी कम मिलती है, अपन को ठंडी पसंद है. उनको गर्मी कम मिलती है इसलिए वो गर्मी कम पसंद कम होती है. चलो. Next is Maya. Now let's see students. याद है students माया कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? Mauritius. है ना? So वो भी बोलेगी nous les Mauriciens. So S for us, the Mauritians, comma. S for us, as of नहीं, S for us आएगा. S for us, the Mauritians, nous avons de la chance. तो avoir de la chance मतलब lucky होता है, to be lucky. तो we are lucky. तूने बोला we are lucky. Toute l'année le soleil brille. Toute l'année is the entire year. आने मतलब year होता है, तो toute मतलब entire. The entire year the sun shines. Sun shines. तो वो देखो अब माया मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है यहाँ पर क्योंकि वो अपनी खुद की कंट्री की बहुत तारीफ कर रही है. And this is good. If you guys are going to some other country, you have to present India. So obviously you have to talk good things about India. ऐसा नहीं कि वहाँ जाके क्रिप करो इंडिया के बारे में या क्रिटिसाइज करो, है ना? चलो. So the entire year the sun shines
Le ciel est bleu. वाओ, कितना नया सीखने मिला स्टूडेंट्स. बताओ स्टूडेंट्स, मॉरिशस में सन कौन से कलर का है? नहीं, स्काई स्काई इज Blue. ब्लू. Blue. अगर तुम लोग ने फ्रेंच नहीं लिया होता, आईटी और हिंदी लिया होता स्टूडेंट्स, तुमको कभी पता नहीं चलता. सोचो. इल्फे बो एदू द वेदर इज. अगेन देखो, इल्फो आया स्टूडेंट्स. इल्फे हमेशा वेदर डिस्क्राइब करेगा. द वेदर इज ब्यूटीफुल. ऑब्वियसली वेदर को हम हैंडसम नहीं लिख सकते इंग्लिश में, सो इसलिए द वेदर इज ब्यूटीफुल एंड माइल्ड. तो स्टूडेंट्स, माया बता रही है कि हमारे यहाँ साल भर एकदम माइल्ड, मतलब एकदम ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं होता है. ओके, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं होता है. नाइस. चलो, अब उसने क्या पूछा फिर मेहदी को. मेहदी कॉमा quel temps fait-il chez vous? What is the weather? What is the weather at your place? What is the weather at your place? Question mark. What is the weather at your place? So students, अब कौन बताएगा, बताओ. Mehdi. या मेहदी बताएगा. ओ मोरक. So in Morocco, comma les hivers ne sont pas sévères mais les étés sont brûlants. Okay, मोरक्को मतलब अपने इंडिया जैसा कुछ है. Les hivers ne sont pas sévères. Tell me English translation. The winters are not severe. Very good. The winters are not severe. May मतलब but The the summers summers are burning. burning. Okay, मतलब जल जाएगा तुम्हारा समर में तो सब कुछ. Yup. अब स्टूडेंट्स, एरिक इतना इरिटेटिंग है ना पर्सनालिटी, आई एम टेलिंग यू. आई डोंट नो, मुझे इसका नाम ही नहीं पसंद आ रहा अब तो. इन फ्रांस लाइक इन कनाडा. तो स्टूडेंट्स, एरिक फ्रांस को किससे कंपेयर कर रहा है, बताओ. Canada. कनाडा से. और कनाडा में स्टूडेंट्स उन लोगों को क्या पसंद है, विंटर पसंद है या समर पसंद है? Summer. Summer. ऑब्वियसली वहां पे समर और स्प्रिंग सीजन बोला था, आई गेस. सो क्या आएगा? इन फ्रांस लाइक इन कनाडा देयर आर 4 सीजन्स. écoutez, listen. Tell me students, what is the tense of the sentence? Je vais réciter. Very good. I am going to recite my poem. यार, जब सब लोग एकदम नॉर्मल अपने आसान भाषा में सब कुछ बता रहे हैं, तो इस भाई साहब को पोएम क्यों बतानी है? ये सेम चीज अभी पोएम गा के सुनाएगा यार. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पोएम्स. गॉड. चलो ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यार, जस्ट 1 सेकेंड. कहाँ पहुँच गए हम लोग भी इतना ऊपर नीचे. क्या फाइंड करूँ? पेज नंबर कौन सा है ये? शायद मैंने कहीं पेज नंबर 126. चलो हम ट्राई करते हैं, अगर 126 कहीं लिख के अगर कुछ मिल जाए तो. हा मैजिक. भगवान का लाख शुक्र है. चलो, हाँ. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ. अब हम एक बहुत ज्यादा बोरिंग पोएम सुनने वाले हैं. आई डोंट नो, यू गाइस माइट बी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पोएम्स, मे बी यू वुड लाइक द पोएम. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको पोएम नहीं पसंद है. मिथिल, आप मेरे वीडियो को स्पॉटलाइट करोगे क्या? So मैं host हूँ. मैं होस्ट. तो क्या मैं देखो को-होस्ट बनाता हूँ. हाँ, स्पॉटलाइट करना वीडियो को. चलो. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विद द, या थैंक्स. सो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर. और क्या करना है हमें इस पोएम को, जो हमें एरिक सुनाने वाला है, उस पोएम को हमें ट्रांसलेट करना है. Après le hiver dur. Tell me इसका मीनिंग क्या होता है? Après le hiver dur का मतलब क्या होता है? After the strong winter. Long winter. Yeah. So after the strong winter बोल सकते हैं. After the strong winter. फिर next line क्या है? Se réveille la nature. Nature awakens. हाँ, the nature wakes up. The nature wakes up. Okay, present tense use कर रहे हैं फिलहाल हम लोग. The nature wakes up. Avec impatience. We wait impatiently. So with impatience. On attend, one waits. Oh, le beau printemps.
Oh, Oh, the beautiful. The beautiful spring. okay. Oh, the beautiful spring. चलो. After that, क्या लिखा हुआ उसका? स्टूडेंट लिखा है il fait beau. The weather is beautiful. The weather is nice. Weather is beautiful. The weather is beautiful. AOC upper shore. And also. And also Also a little hot. a little hot. Mariage vacances et gaieté. So mariage is marriages, vacations, Vacations. and happiness. Gaieté is happiness. Oh, le joyeux summer. So oh, Happy the summer. happy summer. Joyful. Yeah, oh, the happy summer. चलो. अब मैं राइट साइड लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स. Adieu les vacances et les joies. Adieu मतलब बाय बोल रहा है. बाय. Goodbye, Bye. holiday. Yeah, And goodbye joy. vacations and happiness. मतलब वो लोग का कहना मतलब है या तो हैप्पीनेस या तो जॉय लिख सकते हैं. La joie is joy. मतलब वो बोल रहे हैं वैकेशन के साथ साथ सारा मजा भी चला जाता है. Arrive la pluie et le vent froid. Arrive is arrives. The rain Comes the rain. and the strong wind and the strong wind. उसके बाद स्टूडेंट्स क्या आती है? एकदम strong wind आती है. Okay. After that, les feuilles jaunes tombent. So the yellow Leaves are falling. leaves fall. Yellow leaves fall. Oh, the triste autumn. Oh, the sad autumn. The sad autumn. बेचारे ऑटम को तो सैड ही बोल दिया तूने. शी, मेरे को तो ऑटम पसंद है. कितना रोमांटिक होता है. La neige blanche sur les toits. So the white snow on the roof. Okay, students. Allumons un peu de bois. Allumer is let us light. Students वो होता है ना जहाँ पर बहुत ठंडी होती है वहाँ पे घर के अंदर वो आग जलाते हैं वो लकड़े वगैरह. Let us light the wooden fire. Bonfire. Bonfire बोल सकते हैं क्या यहाँ? Bonfire लिख सकते चलो. Bonfire. Pool manteau blazer. Pool मतलब sweater. Sweater. Coats. Blazers. Blazers. Oh, the strong winter. Oh, the strong winter. Full stop. चलो ठीक है. हाँ, students, आप लोगों को समझा ये chapter basically what is the chapter is all about? Yes, sir. So obviously chapter is too much about it is too much Season. about seasons and everything. चलो ठीक है. बढ़िया है यहाँ पे भी बढ़िया है. आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. Répondez les phrases complétées aux questions suivantes. Pourquoi Eric est-il inquiet? Tell me students, why Eric is worried? चलो स्टूडेंट्स देखो मेरे पास यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए. If you guys want to take a screenshot for a while, you can take it once. कैसे करेंगे? चलो मैं ये पूरा रेड कलर का सब कुछ रब कर रहा हूँ फिलहाल. Is that okay for you guys if I rub the red color part? Yes. Yes. चलो ठीक है मैं पहले रेड कलर वाला पार्ट पूरा रब कर देता हूँ एक बार के लिए. ओके अभी सब कुछ साफ हो गया एकदम ही. और now you can see the answers also. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot for a while. Wait, I'll just put it on a page nicely. उसको हटा देते हैं हम. ओके सो यहाँ से सारे आंसर्स लिखे हुए एकदम अच्छे से. Eric est inquiet parce que la ville de Mumbai est paralysée par les pluies de la mousson. So लिखा है Eric is worried because the city of Mumbai is paralyzed by the rains of the monsoon. This is quite simple. If you want, you can tick mark it in your textbook now. After that, second one, quelle saison les Canadiens préfèrent-ils? चलो बताओ students. Winter season. It's autumn. Yeah. So लिखा हुआ है which season the Canadians prefer. So students, Canadians को Winter Yeah. and spring. very good. The Canadians prefer winter and spring. So यहाँ लिखा है नहीं यहाँ पे क्या winter and spring? Summer and autumn है. Autumn and not Summer and winter. autumn है. Summer and autumn. Okay. चलो ठीक है. After that, third is quelle est la saison préférée de Ira? Ira को कौन सा पसंद है बच्चे लोग and why?
Winter season. La saison préférée. The favorite season of Hira is winter because il fait. Because It's yeah. mild. The weather is mild. Yeah, because the weather is mild. इसीलिए बराबर. चलो ठीक है. After that, fourth one, dans quel pays est-ce que les hivers sont longs et durs? In which country winter are long and harsh? Yeah, so Canada. in which country the winter are long and harsh? So the winter are long and harsh Canada. in Canada, AU Canada. So that is the right answer. And going to the last one, fifth, quel temps fait-il en France en automn? So what is the weather in France in autumn? So लिखा है il pleut et il fait du vent froid. So it rains and the weather like it is there's cold rain in France in autumn. तो बारिश होती है और ठंडी हवा चलती है फ्रांस में ऑटम के अंदर इज व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर. चलो ठीक है. देखो स्टूडेंट्स मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ. यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है. पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर. To make. फेयर का मतलब टू मेक या टू डू होता है. ये सब लोग एग्री करते हैं इस पे. चलो Yes, sir. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है केल टॉम फेतिल. टेल मी केल टॉम फेतिल का क्या मतलब होगा. What temperature? देखो यहाँ पे मीनिंग लिख व्हाट इज द वेदर लाइक आएगा. क्या आएगा स्टूडेंट्स. व्हाट इज द वेदर लाइक. मतलब बेसिकली इसके आगे तुम लोग को क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच यूजुअली बीन आस्क्ड अबाउट सीजन. इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन. सो इवन इफ इन योर 12th standard it's not a part of your syllabus, they can still ask you what is the weather in फिर क्वेश्चन मार्क कुछ भी पूछ सकते हो लोग. इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम. बोलो कि मर्जी उनको कोई भी सीजन एक पूछना. वो लोग कोई भी एक सीजन पूछेंगे 2 मार्क के लिए. सो लुक नाउ माय आंसर्स आर ओवर हियर. इल फे शॉट. जब भी मुझे वेदर डिस्क्राइब करना है मैं फेयर वर्ब यूज करूंगा. नाउ इल फे शॉट मतलब द वेदर इज हॉट या तो इट इज हॉट. आप लोगों को दिख रहा है सब कुछ मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है. इल फे फ्रॉड द वेदर इज कोल्ड या इट इज कोल्ड. इल फे फ्रे द वेदर इज कूल या इट इज कूल. इल फे दू द वेदर इज माइल्ड या इट इज माइल्ड. इल फे दू वॉन द वेदर इज विंडी या इट इज विंडी. देखा स्टूडेंट्स. सो देयर आर वो लोगों को खाली इल फे यूज करके नेक्स्ट वर्ड लिखना है. तो आपको ये एडजेक्टिव्स लर्न करने हैं. शॉट मतलब हॉट होता है. फ्लूआज मतलब कोल्ड होता है. फ्रे मतलब कूल होता है. दू मतलब माइल्ड होता है. और दू वॉन मतलब विंडी होता है. ओके बच्चे लोग. Yes, sir. चलो ठीक है. आप लोग को क्या करना है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. यू कैन कॉपी दिस डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक. कंपलसरी नोटबुक के अंदर लिखना है. देखो ये सब मैं टाइम पास के लिए नहीं बता रहा हूँ. ये सब मैंने इतना सब टाइप किया हुआ है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ अपने दूसरे बैचेस में पढ़ा चुका हूँ. आप लोग को समझ रहा है. तो यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि आप लोग को सब कुछ रेडी माल मिल रहा है एकदम. आपको फिर उसको स्क्रीनशॉट लेना है. घर बैठ के अच्छे से कॉपी डाउन करना है. एंड दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर 12th स्टैंडर्ड. मेरा आपको 11th स्टैंडर्ड का सब कुछ पढ़ाना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 12th में इट विल गिव यू अ गुड फाउंडेशन. तो आप लोग आगे ऊपर बिल्डिंग बना पाएंगे. चलो ठीक है. इतना भाषण काफी है अभी के लिए. नेक्स्ट इज यार ये एक्सरसाइज मेरे को नहीं पसंद है. क्वेश्चन नंबर 2. cherchez dans le texte et dans le poème les phrases sur les saisons. या इंग्लिश ट्रांसलेशन करो बच्चे लोग. चलो करो. सर्च का मतलब सर्च. search in the text and in the poem of the phrases on the sections. Yeah, so search in the text and in the poem the phrases on the season. देखो लोग ने क्या क्या थोड़ी बहुत चीजें ब्लैंक रखी हमारे लिए. तो हमको उसको सर्च करना है in the different countries and add them in the boxes in the empty boxes given below and add them in the empty boxes given below and add them in the empty boxes given below. ये with मतलब empty होता है. with with मतलब empty होता है. both मतलब box होता है. दोनों मतलब given होता है. see देसी मतलब below होता है. चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. स्प्रिंग का देखो उन्होंने दोनों सेंटेंस लिखा हुआ है. टेल मी स्प्रिंग में क्या लिखा हुआ है. It is cool. Il fait encore frais, il pleut. The weather is still cool, it rains. The weather is still cool, it rains. And la nature se réveille, the nature wakes up.
तो बच्चे लोग अभी आप लोग को बस ये सारे सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। समर में बताओ क्या होगा बच्चे लोग? इल्फे शॉर्ट लिख सकते हैं हम लोग बराबर। इल्फे शॉर्ट, मुझे ऑटम में बताओ, मैं क्या लिखूंगा ऑटम में? इल्फे आता है, इल्फे ड्यूवॉन, इल्प्ल भी लिख सकता हूँ, इल्प्ल। विंटर में क्या आएगा बच्चे लोग? इल्नीश, Ilfe Frua. इल्फे फ्रुआद। चलो सो लुक स्टूडेंट्स, अभी समर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू हेल्प मी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। और पॉट दे वेटमो लेजर इलिया दे वाकॉन्स। इंग्लिश ट्रांसलेशन। We wear light clothes. One wears light clothes, there are vacations. Light मतलब हल्के हल्के कपड़े। चलो ठीक है। Le feuille tombe c'est la rentrée. English translation, anyone who wants to try? Leaf falls. Leaf falls. Very good. And says la rentrée is. It's back. It's back. Yeah, so c'est la rentrée. मतलब the leaves fall. This is the rentrée, मतलब students जब बच्चे लोग है ना वैकेशन से वापस घर लौटते हैं, वापस स्कूल स्टार्ट होती है, that is rentrée is like come back. This is the comeback or like coming back home again, ऐसा कुछ. And last, winter में क्या लिखा है? और port और pool और blazer. Wear a sweater or a blazer. Yeah, so one wears a sweater or blazer. चलो नेक्स्ट इज इन इंडिया। चलो स्टूडेंट्स, अब समर में हमको क्या लिखना है? वापस वही सारी चीजें लिखने वाले हम लोग, काफी सारी। तो स्टूडेंट्स समर के लिए आप इल्फे शॉर्ट लिख दो, मुसो के लिए सेम लिख दो, इल्फे ड्यूवॉन, इल्प्ल, और हिवेर के लिए इल्फे फ्रुआद लिख दो। खाली इल नीच हटा देना बिकॉज यूजुअली इट डज नॉट स्नो इन इंडिया। सो अगर आपको चाहिए तो ये वाला पार्ट खाली हटा दो। बाकी आप समर के लिए इल्फे शॉर्ट लिख सकते हैं, मुसो के लिए सेम लिख सकते हैं, और विंटर के लिए भी सेम लिख लेंगे। इल या दे ग्रॉन वाकॉन्स, टेल मी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या आएगा? It is a big vacation. There are There is a big vacation. there are big vacations. One wears light clothes. चलो मुसो में स्टूडेंट्स बताओ, मुसो में अभी हमने देखा था, यहाँ लिखेंगे quelquefois il y a des inondations. So sometimes there are floods. और विंटर में बच्चे लोग क्या आएगा? विंटर में il y a des vacances de Noël. There is a Christmas holiday. Christmas. Yeah, there are Christmas vacations. Okay, there are Christmas vacations. चलो ठीक है, पीछे बढ़ेंगे बच्चे लोग। कैल टॉम फेथिल, देखो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था ये सब। कैल टॉम फेथिल वाला पार्ट मैंने अभी जस्ट बताया था। व्हाट इज द वेदर लाइक? तो स्टूडेंट्स जब भी हमें वेदर को डिस्क्राइब करना, हम इल्फे वर्ड यूज करेंगे। देखो चलो बता दे रहा फटाफट। इल्फे बो मतलब क्या होगा? The The weather is beautiful. इल्फे शॉल, इट इज हॉट या वेदर इज हॉट बोल सकते हैं। इल्फे फ्रुआद, इट इज कोल्ड या वेदर इज कोल्ड। इल्फे फ्रे, इट इज कूल या द वेदर इज कूल। चलो तो ये सब कुछ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। इल्फे दू, द वेदर इज माइल्ड। माइल्ड मतलब ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी। इल्फे ड्यूवॉन, इट इज विंडी। इट इज विंडी मतलब बहुत क्यों आती है हवा, ऐसा कुछ। क्यों होता है ना तुम जानो हम। चलो नेक्स्ट इज इल याद यू ब्रूलाद, इट इज फॉगी। ब्रूलाद मतलब फॉगी होता है स्टूडेंट्स। हम लोग एक बार ना लोनावाला से आ रहे थे, बहुत टाइम पहले की बात है। संडे इवनिंग मतलब सैटरडे को गए थे, संडे इवनिंग आ रहे थे। अप्रोक्सीमेटली 4:35 हुआ था। मतलब इट वाज मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे ऑब्वियसली पूरा सन वगैरह होता है एकदम 4:35। बट वी कुड नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड द रोड। मतलब इतना फॉग था। हम लोग जब नीचे वो घाट नीचे उतर रहे थे, मतलब हम ऑलमोस्ट 10 की स्पीड पे चल रहे होंगे। वो भी मैप्स ऑन करके अंदाजा लगाए थे कि कभी लेफ्ट आएगा कभी राइट, और वो भी डिपर ऑन हुआ है ना, लाइट चालू रहता है, चालू बंद, ताकि आगे पीछे वालों को शायद लाइट से पता चले कि भाई आगे पीछे कोई गाड़ी है। इतना फॉग था। एंड इट वाज वेरी डेंजरस बिकॉज ऑलरेडी घाट नीचे उतरना है, प्लस इतना फॉग वगैरह, यू डोंट नो आगे क्या है क्या नहीं है। बट आई गेस दैट वाज वेरी एडवेंचरस। सो इलियाद यू ब्रूलाद, ब्रूलाद मींस फॉग होता है जो एकदम पूरा स्मोक हो जाता है वो। नेक्स्ट इज इल्प्लो, इल्प्लो मींस इट इज रेनिंग। इल्प्लो। चलो स्टूडेंट्स इसका फुल वर्ब चाहिए तो वहाँ पे लिख लो। प्लवुआर एक इसका फुल वर्ब है, प्लवुआर। प्लवुआर का मतलब होता है टू रेन। प्लवुआर, once again प्लवुआर, PLEUVOIR, प्लवुआर टू रेन।
और उसका कॉन्जुगेशन है इल प्लस, इट इज रेनिंग. नेक्स्ट इज इलनिश, इलनिश नीशेर, नीशेर टू स्नो. इट्स अ वर्ब, इट्स अ ईआर एंडिंग वर्ब. देखो स्टूडेंट्स इन दोनों वर्ब के सिर्फ एक एक कॉन्जुगेशन है. टेल मी यूजुअली हर एक वर्ब को कितने बच्चे होते हैं, कितने कॉन्जुगेशंस होते हैं बच्चे? 8 कॉन्जुगेशंस होते हैं, जतु इलेल, नुवु इलेल. तो स्टूडेंट्स लेकिन इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ इल फॉर्म होता है, बाकी कोई भी फॉर्म नहीं होता. आई कांट से आई एम रेनिंग और यू आर रेनिंग. खाली इल प्लस और इलनिश, इनके सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशंस पाए जाते हैं बच्चे लोग. ठीक है, चलो नेक्स्ट. इलिया ओराज, देयर इज स्टॉर्म, देयर इज स्टॉर्म. ओराज मींस स्टॉर्म होता है बच्चे लोग. स्टॉर्म मतलब एकदम तेज हवा नहीं, एकदम इतनी तेज हवा नहीं, एकदम ऐसा कुछ. तो इलिया ओराज. ओके. CL ए नुआज, CL मींस स्काई होता है. CL इज अ मैस्कुलिन नाउन. यहाँ पे लिखो m डॉट सिंगुलर, मैस्कुलिन सिंगुलर है बच्चे लोग, मैस्कुलिन सिंगुलर. चलो नेक्स्ट इज नुआज. नुआज मींस क्लाउड होता है बच्चे लोग. एंड नुआज is a masculine noun. Nuaj is also masculine noun. Soleil, soleil is feminine. Soleil is also masculine noun. Sun, sun भी masculine है. Arc or CL, arc or CL मतलब rainbow. Arc or CL, rainbow. Rainbow is also masculine noun. Arc or CL. And finally last two are feminine. Lune, lune is a feminine noun. Moon and eighth one means stars होता है. Moon and stars दोनों feminine noun है. आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन मैस्कुलिन कौन फेमिनिन ये जानना. उसका रीजन है कि आपको अगर कहीं पे पीछे आर्टिकल लगाना हो, इसीलिए आपको हेल्प हो जाएगी. चलो, हैव यू गाइस कंप्लीटेड दिस मच, यस और नो? Yes. सर रेनबो का मैस्कुलिन नाउन है. यस यस, रेनबो इज मैस्कुलिन नाउन. Sir, cloud. यस Cloud masculine कैसे हुआ? बेटा कैसे हुआ, एज इन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? कैसे हुआ मतलब बेटा ये It's feminine plural, ना? नहीं बेटा, इट इज मैस्कुलिन नाउन. Okay. है ना बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि लास्ट में ई है तो फिर फेमिनाइन ही होगा. देयर आर फ्यू, देयर आर जैसे ओम, HOMME, ओम एक ऐसा वर्ड है इसके लास्ट में ई है पर फिर भी वो फेमिनाइन मैस्कुलिन है ना. लीजे एक ऐसा वर्ड है, LYCE एक्यूटी, जिसके लास्ट में 2 ई है पर फिर भी वो मैस्कुलिन नाउन है. Okay. Yep. Now going with the last part students, expression with avoir. देखो मैं बच्चे लोग तुम लोग को बताता हूँ, avoir के साथ काफी सारे एक्सेप्शन है जो एक आप लोग को ऑलरेडी पता है. मुझे बताओ हाउ डू यू राइट योर एज. अगर मुझे बोलना है आई एम 16 years old तो मैं कैसे लिखूंगा फ्रेंच में? J'ai 16 ans. Is this right बच्चे लोग? Yes, sir. तो इसका इंग्लिश आई एम 16 years old हुआ बच्चे लोग. आई एम 16 years old. तो यहाँ पे हमने our वर्ब क्यों यूज किया जबकि इंग्लिश में आई एम यूज किया है? तो फिर सर एज की जब भी लिखूंगा ओवर इट्स एन एक्सेप्शन. वेरी गुड बच्चे लोग. तो एक्सेप्शन क्या बोलता है कि जो एथरो को ना फॉलो करते हुए avoir को फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन बोलेंगे. चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग ऐसे काफी सारे एक्सेप्शंस देखेंगे, एक्सेप्शंस विद वर्ब avoir. और मैंने यहाँ पे भी आप लोग के लिए पूरा सब कुछ अच्छे से टाइप करके रखा हुआ है सो दैट या स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, our स्वाफ. जब बहुत प्यास लगेगी बच्चे लोग, टू बी थर्स्टी. our मतलब टू हैव होता है पर यहाँ पे इसका मीनिंग टू बी थर्स्टी होगा. लुक, जे स्वाफ मतलब आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी. our फार्म जब भूख लग रही है बहुत जोर से, टू बी हंग्री. तो यहाँ पे विभूति आ फार्म, हमने तो उस दिन लेक्चर में विभूति नाम की लड़की थी इसलिए विभूति का नाम लिया था. चलो आज हम प्रियांशी का नाम लेते हैं. प्रियांशी इज वेरी थर्स्टी, नहीं हंग्री. प्रियांशी आ फार्म मतलब प्रियांशी इज हंग्री. इज दैट ओके बच्चे लोग? ठीक है, नाम चेंज नहीं करते, क्या फर्क पड़ेगा. चलो स्टूडेंट्स इसमें लर्न क्या करना है, जब भूख लगेगी और प्यास लगेगी वो एक एक्सेप्शन है. उसमें इंग्लिश में भले हम आई एम, यू आर, ही इज, शी इज यूज करते हैं बट फ्रेंच में हम avoir वर्ब यूज करेंगे. आर यू गाइस गेटिंग दैट? Yes, sir. यस सर. नेक्स्ट इज avoir पर, फट जाना, डर लगना. टू बी अफ्रेड ऑफ, टू बी अफ्रेड ऑफ यहाँ पे 2 बार भी लिख दिया मैंने. टू बी अफ्रेड ऑफ. अच्छा तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ले फील परदेशिया. बताओ मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग क्या आएगा? Because The girl is scared of dogs. Yeah, the girls The girl are is scared afraid or of afraid of the dogs. देखो बच्चे लोग यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है मैंने, डोंट वरी. The girls are afraid of dogs, ऐसा एग्जांपल है. चलो ठीक है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंग्लिश में देखा है तो आर आएगा बट फिर भी हमने our वर्ब यूज किया है. Our raison, to be right. तो अगर मैं बोलूंगा elle a raison, बताओ इसका मीनिंग क्या होगा? She is right. She is right. Very good.
आवर थॉट, थॉट मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, रॉन्ग होता है, तो इला थॉट इसका मीनिंग क्या होगा बच्चे लोग? He is wrong. इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स तुम लोगों ने ये TORT 4 वर्ड है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। इसके ऊपर है ना हमारे लॉ में, मैंने लॉ किया हुआ है ना, आई एम ए लॉयर, इसके ऊपर है ना एक 1200 पेज की एक बुक है खाली इस 4 वर्ड के अक्षर पे, टॉट, टॉट करके एक बुक का नाम है, 1200 पेज की बुक है। सोचो, दिखता है इतना मासूम सा वर्ड है ये TORT, टॉट, बट दिमाग खराब करके रख दिया लॉयर्स लोग का। चलो, आवर buzzword to be need of, I will give you an example. शाहरुख खान, नहीं शाहरुख खान, एक चीज इज इन नीड ऑफ buzzword, वो द यूनिवर्चुअल, बताओ इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? Shahrukh Khan is in need of a car. वेरी गुड, शाहरुख खान इज इन नीड ऑफ कार। ठीक है, एग्जांपल है खाली। तो स्टूडेंट्स देखो, आवर buzzword देखा है तो आवर यूज हुआ है, बट इंग्लिश में इज आएगा, इज इन नीड ऑफ अ कार। ओके बच्चे लोग, चलो फिर एज वाला एग्जांपल तो मैंने अभी जस्ट आपको दिया था, ये सेजॉ, ये सेजॉ मतलब क्या होता है? ये सेजॉ मतलब I'm I am 16. 16 years old. Our fraud to feel cold, our fraud to feel cold, अगर मैं बोलूंगा that यश आ फ्रुआद, तो यश आ फ्रुआद मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? यश इज फीलिंग कोल्ड। बच्चे लोग अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना, यश ए फ्रुआद, इसका मतलब क्या होगा? Yash is cold. एग्जैक्टली, यश इज कोल्ड। देखो अगर हम लोग ये एग्जांपल दे, यश आ शॉद, इसका मतलब क्या होगा बच्चे लोग? Yash is hot. यश इज फीलिंग हॉट। ए भाई, आवर है ना, आवर में टू फील हॉट होता है। यश इज फीलिंग हॉट। अगर मैं बोलूंगा आज यश नहीं आया ना हमारे लेक्चर में, यश, यश आर यू देयर? ओह, यश मकवाना इज एब्सेंट टुडे। चलो ठीक है, तो उसके बारे में हम बुरा बुरा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यश इज शॉट, टेल मी, अब यश इज शॉट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आएगा यश इज हॉट। मतलब अगर मैं आवर वर्ब यूज करूंगा बच्चे लोग तो फीलिंग हॉट, और अगर एतरा मतलब तो डायरेक्टली हॉट, समझ रहे हो? चलो स्टूडेंट्स देखो, मैं तुम लोग को इसको समराइज करूंगा। कभी कभी एक्सेप्शन आएंगे, जब भूख लगेगी, प्यास लगेगी, डर लगेगा, सही हो या गलत हो। 5 चीज, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, डर लगेगा, सही हो या गलत हो, किसी चीज की जरूरत होगी, एज बताना है, या ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी। इतनी चीजों में स्टूडेंट्स हम आवर वर्ब यूज करेंगे, भले इंग्लिश में एत्र हो तो भी। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए ना आई गेस। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, डर लगेगा, सही हो गलत हो, किसी चीज की जरूरत हो। छोड़ो, थर्ड क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे थर्ड नंबर दे देते हैं, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर एंड 9 नंबर। चलो तो स्टूडेंट्स टोटल कितने? 9 है। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो। पहले देखो ये वाले इतने से स्क्रीनशॉट में आएगा, आप लोग का 6 तक तो आ जाएगा। प्यास लगेगी, भूख लगेगी, डर लगेगा, सही हो गलत हो, और किसी चीज की जरूरत हो, एज बतानी हो, ठंडी लग रही हो और गर्मी लग रही हो, तो आप लोग तो इतने एक्सेप्शन जरूर, 9 एक्सेप्शंस। इज दैट ओके बच्चे लोग? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो स्टूडेंट्स देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या बताया। टेक्स्ट बुक में भी सेम बताया। यू गाइस हैव टू हेल्प मी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। फर्स्ट इज आवर फ्रुआद टू फील कोल्ड। टेल मी इसका मीनिंग क्या होगा? एला फ्रुआद, She is feeling cold. वेरी गुड, शी इज फीलिंग कोल्ड। आवर शॉद, इला शॉद, इला शॉद का मीनिंग क्या होगा बच्चे लोग? She is feeling Feeling afraid. ही of इज dog. फीलिंग हॉट। अरे बच्चे लोग, मैं इला शॉद बोल रहा हूँ यहाँ पर, इला शॉद। कोई बच्चा तो यहाँ पे डॉग तक पहुंच गया, राइट साइड पहुंच गया। ही इज हॉट, ही सॉरी, ही इज फीलिंग हॉट, ही इज फीलिंग हॉट। चलो थर्ड इज आवर पर, एला पर द शिया, एला पर द शिया, इसका मीनिंग क्या होगा? He is afraid of dogs. She is afraid of She is afraid dogs. of dogs or she is scared of dogs. Our buzzword the. तो il pleut, je buzzword a parapluie. It's raining. I need umbrella. Very I good. am So it is raining. I am in need of umbrella. It is raining. I am in need of umbrella. 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 चलो our fa to feel hungry. So il afa मतलब he is hungry आएगा. Il afa he is hungry. To feel thirsty, ila swaf. Ila swaf मतलब he is thirsty. He is thirsty.
एंड फाइनली आवाज वाला शॉन्स। स्टूडेंट्स मैंने आवाज वाला शॉन्स नहीं लिखा ना मेरे वाले में, रुक जाओ मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, टोटल 10 हो जाएंगे। 10 नंबर यार इतना छोटा हो गया, जस्ट 1 सेकेंड। आवाज वाला शॉन्स इसका मतलब टू, क्या था इसका मीनिंग? टू बी लकी, टू बी लकी। ओके, अगर मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम एग्जांपल है निकिता ए नहीं अवॉर वर्ब द ला शॉन्स, इसका मतलब क्या होगा? निकिता इज लकी। ओके बच्चे लोग, निकिता आर द ला शॉन्स, निकिता इज लकी। चलो सो यहाँ पे स्टूडेंट्स का लिखा है ट्यू पारो वकॉन्स ट्यू आर द ला शॉन्स। आर यू लिविंग ऑन वैकेशंस यू आर लकी। आर यू लिविंग ऑन वैकेशंस यू आर लकी। चलो तो स्टूडेंट्स देखो हमें बुक में कितने दिए? सिर्फ 7 ही दिए, 1 2 3 4 5 6 7, बट मैंने आप लोग को टोटल 10 बताया ऐसे, तो तुम लोग को इतना ये याद रखना होगा, टोटल 10। चलो स्टूडेंट्स वी विल जस्ट, माय गुडनेस कितने टोटल जी तक है। चलो दिस इज टू मच ऑफ वोकैब्स, विल स्टार्ट विद आर एंडिंग वर्ब्स। थोड़ा सा आर एंडिंग वर्ब करते हैं बच्चे लोग, आई कांट टेक टू मच ऑफ वोकैब्स इन वन लेक्चर। थोड़ा ग्रामर करेंगे, मस्त चिल मारेंगे, थोड़ा खुश होंगे। चलो स्टूडेंट्स अभी आज आर एंडिंग वर्ब, टोटल कितने टाइप के वर्ब्स होते हैं बच्चे लोग बताओ? रेगुलर वर्ब्स टोटल कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले ई आर एंडिंग वर्ब। बताओ स्टूडेंट्स ई आर एंडिंग वर्ब्स के एंडिंग्स क्या होते हैं? वेरी गुड। अब बच्चे लोग बताओ स्टूडेंट्स आई आर का क्या होगा? आई आर एंडिंग वर्ब्स का क्या होगा? नहीं पहले आर ही किया था हमने, सॉरी आर ही किया था। एस कुछ नहीं, ONS वेरी गुड। अब लास्ट आयर एंडिंग वर्ब देखेंगे स्टूडेंट्स, जो हम इस चैप्टर में देखना है आयर। तो ऑब्वियसली रूल नंबर 1 आयर ड्रॉप करेंगे, फिर IS IS IT IT ISSONS ISSEZ ISSCNT ISSCNT। चलो तो बच्चे लोग आप लोग को ये याद रखना है IS IS IT IT ISSONS ISSZ ISSCNT ISSCNT। स्टूडेंट्स देखो आई वांट समवन, आप मेरे को चाहिए आप में से कोई लोग क्या करो ना, ये जो पार्ट है जो मैंने रेड कलर से लिखा है उसका फोटो एक स्क्रीनशॉट लो और उतना सा क्रॉप करके खाली ग्रुप में डालो ना प्लीज, जिसमें EESEEONSEZENTENT SS कुछ नहीं ONSEZENTENT IS IS IT IT ISSONS ISSCNT ISSCNT ISSCNT। चलो तो स्टूडेंट्स देखो उन्होंने क्या दिया हमारे सामने, एक एग्जांपल दिया हुआ है ऑलरेडी। फिनिर वर्ब, फिनिर मींस टू फिनिश, तो उन्होंने फिनिर का आईआर ड्रॉप कर दिया है, फिर IS IS IT IT ISSONS ISSZ ISSCNT ISSCNT। तो जो फिनी tu fini il fini el fini nu finisò vi finisse il finis el finis। तो I finish you finish he finish she finish we finish you finish they finish। ओके चलो ठीक है बच्चे लोग। चलो अभी आप लोग क्या करोगे, you guys are going to take one verb everyone। I will choose one verb, 1 second, I will choose a verb, an easy verb for you guys। फिनिर वर्ब ऑलरेडी करके दिया हुआ है ना, मुझे एक इजी वर्ब 1 सेकंड सोचने दो बच्चे लोग। चलो सब लोग ग्रॉन्दिर वर्ब लो, ग्रॉन्दिर वर्ब लो। एवरीवन विल स्टार्ट विद ग्रॉन्दिर वर्ब। यू हैव टू सॉल्व इन योर बुक एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो आई होप सारे बच्चों ने सबमिट कर दिया है एंड सबने ऑलमोस्ट राइट लिखा है, मैंने चेक कर लिया जस्ट नाउ। स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत ट्राई करना है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो पेज 131 पे घर से सॉल्व कर 1 और 3rd एक्सरसाइज तक सॉल्व कर लेना, दैट्स इट। ओके मैं एक बार के लिए इसको वीडियो को फिनिश करूंगा।